So in our last lecture we had calculated the deflections. This beam was taken fixed था ना, first one was fixed ना, right. आप लोग सभी जो किया हुआ है हमने उसको एक तरफ रखो, कॉपी में बिल्कुल फुल पेज पे इसको बनाओ सभी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा। कल तो आपको मालूम नहीं था, लास्ट क्लास में मालूम नहीं था, सब गिच पिच हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। पूरा फुल पेज पे आप इसको पूरा फुल पेज पे बनाना है। इसमें कितने, एक तो ये गिवन लोडिंग हो गई और कितने फिगर बनेंगे, 3 फिगर बनेंगे, राइट, और काफी स्पेस देके। सो दिस द गिवन बीम, व्हाट वाज द लोडिंग, वैल्यू ऑफ लोडिंग W 2 kilonewton per meter. It was I think 10 kilonewton, 3 kilonewton per meter, and the distances were, this one was 5 meter, 3 meter, 2 meter and 5 meter, and moment of inertia was not same. I think it was I, it was 2I and I. This was the problem. This was the problem, and our objective is to analyze the beam, means to find all the forces acting in this beam. After calculating all the forces, we will plot bending moment and shear force diagram, and that diagram will be used for the design purpose. This is the actual beam, 3 continuous beam. देखते हैं ना हम लोग, this one beam, ये हो जाएगा 1 2 3। हाँ, इस कमरे का अगर हम केवल डिजाइन करें देन यही सिचुएशन होगी। ये वाली बीम, ये दिस वन बीम, इस बीम की बात कर रहे हैं हम, दिस बीम, दिस वन इज फिक्स्ड, ओके फिक्स्ड। हाँ, दिस वन इज, दिस इज नॉट फिक्स्ड, हिंज है, बट अगर ये इसको मैं फिक्स कर देता तो यही बीम हो जाती, इसी बीम की बात करता। क्लियर? सो आप लोग जब इसका रेड जलने लगे ना, ओके, सो वी आर trying to analyze this beam using force method. So to using force method we have to make 3 compatibility equation, because number of forces are more than 2. Number of forces are more than 2 and 3 forces are extra. So we need to calculate, first of all we need to calculate those extra forces, and for continuous beam I had suggested that you take the redundant at B moments. If this point is B, then it MB, take this redundant and take this type of redundant MC and take this as MA. That I have communicated to you. For continuous beam, select the redundant in this manner. Always select in this manner. The benefit while taking the redundant is that all segments of the beam are separated with each other. Are separated with each other, which makes our calculation easier. Which makes our calculation easier while calculating the deflection. Which are required for the compatibility equations. Okay? So follow this step. In many books
some supporting actions are taken, they will take some supporting action, they will take MA, or they will take, they can take all these three as a redundant. Do not take that. The process is calculation of the deflection, it is very difficult. In books, author are in the habit of using formulae, but in exam you have to remember that formula, and that will be your big problem. That will be the big problem, because in exams the formula are not written, the formulas are not written. So I will not suggest to follow that approach, because the remembering of formula is a very, 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 very difficult thing. They creates a lot of confusion while using. Which one should pick, which one formula, either it is 2 or 3, हो गया खत्म. अगर दिमाग में आ गया 2 है 3 है, हो गया, गलत आंसर आएगा, और ये होता है. इसलिए आप यही चीज फॉलो करो फॉर कंटिन्यूअस. इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगा केवल एक सेगमेंट की, तो उसमें मैं जो चीज आपको याद रखनी है, प्रोसीड करना है, वो भी बता दूंगा. लेकिन कंटिन्यूअस के लिए हमेशा आप यही चीज फॉलो करो. क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आंसर निकलेगा दूसरों से भी, लेकिन पहले आप इसको करो. जब इसमें आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, दूसरा वाला कीजिएगा, और तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए. क्लियर? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ब्लाइंडली आप फेथ करो. पहले आप जो कह रहा हूं उसको कर लो, इसके बाद दूसरा करो. मना किया हूं क्या मैं करने को? पहले ये कर लो, इसके बाद दूसरा करना. क्लियर? आगे द फर्स्ट स्टेप इन फोर्स मेथड इज टू मेक द which one structure? Primary. So for primary structure, if we will take this type of moment, then it will split in 3 parts. So this one, this joint B will be treated as a hinge in this manner. One segment, another segment is this and this. So this point is A, this point is B, this point is C, this is D. फायदा ये हुआ, ये रिडंडेंट लेने का फायदा ये हुआ. अब इजी है, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे. दैट वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. And I have communicated to you that in primary structure सेम टाइप ऑफ लोडिंग, सेम जो भी लोडिंग है ऊपर है गिवन बीम में, वैसे ही लोडिंग इसमें भी लगती है. सो मेक द लोडिंग इन द सेम मैनर एज इन गिवन बीम. So after applying the loading, external given loading in primary beam, we will get the primary structure. And after making the primary structure, we have to calculate some deflections. And that deflection has been calculated in my last class. But here we will mention all this. So this beam individually, बस केवल अगर इसका देख, if we want to make the deflected shape, then we have to see only this segment of beam. We will not notice another segment of beam. To make the deflection, to calculate the deflection, we will observe only this part. So the deflected shape will follow this path. Similarly, this will follow this part. This will also follow this part. This is the deflected shape. And the required deflection should be where? Should be at what point? Point of redundant. Should be at the point of redundant. So at point A, moment is there. So which type of deflection we need to calculate?
Which type of deflection we need to calculate? Of course, rotation. Of course, rotation. So rotation at point A, it will be this. So this will be theta A, yeah, it is d1. We will write d1. We will write d1. Another deflection which will be required while making the compatibility equation, we should go at point B. We should go at point B, and at point B we are observing that the redundant type of force is acting. Moment is a combination of moment. What is at point B? What is at point B? Notice B point B क्या है? It is the combination of moment. It is the combination, not moment. It is the combination of two moments. It is the combination of two moments. This process, ये इससे मैं इसको प्रेस करूंगा, ये प्रोसेस, ये वाले स्केल है, कापी दो. ये अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये, इफ आई विल अप्लाई दिस टाइप ऑफ थिंग, ऐसे अगर मैं चीज करूं, क्या होगा? ये इट विल बेंड, सैगिंग, दिस विल बेंड. So we need to calculate this type of deformation. We need to calculate this type of deformation. Clear to everybody? Means if this point is B, this point is A, this point is C, तो इस पे जो टेंजेंट होगी और इस पे जो टेंजेंट होगी, बीच का एंगल कैलकुलेट करना है. Is it clear? So we need to calculate this one. We need to calculate this one. तो जिस तरीके का रिडंडेंट होगा वही चीज कैलकुलेट करेंगे. अगर वर्टिकल होगा तो वर्टिकल फोर्स होगा तो क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे. मोमेंट होगा, देन व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? रोटेशन. इस टाइप की चीज है तो ये हम चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वी विल राइट इट एज d2. वी विल राइट हियर d2. Another type of deflection we need to calculate. Which one deflection we need to calculate? Of course at point C. Of course at point C. So at point C, this will be d3. So this is d1. This is d2. And all these three values we have calculated in our last class. So tell me that value. d1 10.42 divided by EI. This is the value of d1. और ये कितने? 17.42 divided by EI. This is the value of d2. And 23.63 divided by that value we have calculated. No problem. So after making the primary structure and calculating these forces, the next step, you know very well, unit load. We will apply one by one unit load at that point, at all those points where redundant was selected, where redundants were selected. So one by one we will apply unit load at point A. We will after applying this and calculating the deflection value, we will apply unit load at point B, and while applying the unit load, जिस तरीके का रिडंडेंट होगा वैसा ही अप्लाई करेंगे. मतलब इस साइड, इन दिस पार्ट, दिस इज राइट, तो कैसा है ये? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, और इस पार्ट के लिए क्लॉकवाइज. ओके, सो वी विल मेक this diagram, and this diagram will be for MA equals to 1. This diagram will be for MA equals to 1. So the beam already has been splitted into three form.
beam has been split into 3 form, and we know that in this beam only redundant will act, only redundant will act, no any external loading will be there, no any external loading will be there. केवल और केवल कौन सा लगेगा लोड, कौन सा लगेगा, केवल और केवल यूनिट लोड फार पॉइंट है। क्लियर ना बेटा? ये इसकी वजह से डिफ्लेक्शन देख लो कहाँ कहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा। ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगी, ये इसी पे लगा हुआ है, इस पे तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, इन दोनों पे कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा। जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो सब इस पे आएगा, जो भी डिफॉर्मेशन होगा इस पे आएगा, एंड इट विल डिफॉर्म, इट कैन डिफॉर्म इन दिस मैनर, it can deform in this manner. What will be the shape? I am not going to follow that shape, but it will be in this manner. So we have to calculate the deflection at the selected point of redundant, at the selected point of redundant. So this one, इसको क्या लिखेंगे, del अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सो दिस वन वैल्यू, दिस इज del 11, del 11, कम टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे दिस वन, दिस विल बी del 21, और यहां पे क्या है, कुछ है क्या, नो चेंज, नो चेंज, दैट मीन्स इट इज 0, and it is 0 and the value is, ये दोनों की वैल्यू बता दो, टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस टू, 5 by 3 EI, 5 by 6 EI कैलकुलेट करी चुके हैं। एंड आफ्टर मेकिंग दिस डायग्राम वी नीड अनदर 2 डायग्राम। आउट ऑफ दिस 2 डायग्राम, one will be for m b equals to 1. Out of these 2 diagram, one will be m b equals to 1, and the so for this case where we should apply the unit load at point B, and which type of nature, same type of nature, means same type of nature means what, this one part anti-clockwise and this one part clockwise, both having unit. So this type of load we will apply, this type of load will apply. It means this one segment has the moment of clockwise direction with magnitude of 1, and this one segment has the moment in anti-clockwise direction with magnitude 1, and this one segment is without any load, this one segment is without any load. Clear? So after applying that load we can calculate the deflection at the required places, we can calculate the deflection at the required places, and so make the deformation. So deformation can be in this manner, it can deform in this manner, this can deform in this manner, this can deform in this manner, but this will not deform, this part will not deform, that part will not be deformed. So the value, this one you know very well, what symbol should be used, del 1 2, and this one del 2 2, and here del 3 2, और ये सब वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। All this deflection has been calculated, so tell me the values.
5/6EI, 15/6EI, 5/12EI. We have calculated. और आप देख सकते हैं both are of positive sign. This one positive, but this is negative sign because load जब लगेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा. That's why प्लस माइनस. और प्लस माइनस के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, डायग्राम अपने आप दे देता है. कुछ करना पड़ा क्या? डायग्राम अपने आप. कैपिटल M and स्मॉल m डायग्राम will give automatically either positive or negative. That will give the proper sign. Our result, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बट एनालाइज करने की जरूरत है कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है. Why it is happening? And the last diagram we need for what? MC equals to 1. So we have to make another diagram, and that diagram will be for unit load at point C. So we will make further and in this case we will apply load at what point? At C, in this manner. And now we are in a position to mention its deformation. We are in a position to mention its deformation, and its deformation can be represented in this form. So this one segment will have the deformation, but this segment will not have any deformation. So the various deflection here, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? del 3 here I am writing wrong notation. It will be del 1 3, it is 0, and here this one del 2 3, it is 5/12EI, and this one this is del 3 3, and this value is 15/6EI. और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि यूजिंग मैक्सवेल्स थ्योरम, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, इफ दिस वैल्यू इज 0 then 1 3 will automatically be 0. You can verify here, 1 3 will automatically is 0. Why it is 0? Because there is no any deformation, it is in actual position. So before loading and after loading, this point does not have any deformation. Before loading and after loading, it does not have any deformation. This is true at point C, and it is also true at point कहाँ पे? A पे. So that's why it is 0, and that has been verified by the Maxwell's. Maxwell's में यही स्टेटमेंट दिया हुआ है. मैक्सवेल्स का स्टेटमेंट भी यही है. मैक्सवेल्स का स्टेटमेंट यही है. जो चीज यहां पे हो रही है उसी को उन्होंने शब्दों में रिप्रेजेंट कर दिया है. यही तो हो रहा है. यहां पे कोई मैक्सवेल का जरूरत है क्या? मैक्सवेल थ्योरम की जरूरत है क्या इसमें? अपने आप दिख रहा है. इट इज ऑब्वियस. देयर इज नो एनी नीड ऑफ एनी थ्योरम. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट usual thing was observed by the Maxwell. And when he concentrated his all mind, and after doing a lot of effort,
he has given a statement, and that statement is Maxwell's reciprocal theorem, nothing else. You can also do. This is not a very big problem. This is not a very challenging task. You can also do. जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं चाहता हूं सब लोग वर्ल्ड के कोने कोने पे जाके अपना नाम रोशन करें, ऐसी चीज कर सकते हैं आप लोग। कोई किसी फील्ड में नाम रोशन करेगा, कोई किसी में नाम करेगा, कर सकते। जो यूजुअल चीज है उनको आप नोटिस करो, जो यूजुअल चीज हो रही है उनको नोटिस करो, उन पे काम स्टार्ट कर दो और फिर कंक्लूजन ड्रा कर दो, है ना। सही चीज आपने अगर नोटिस की है, रिजल्ट भी सही है, वर्ड आपको जान जाएगा, बस खत्म हो गया, जीवन सफल हो गया आप। क्लियर? इस तरीके से हमें पढ़ना है। हमारी अप्रोच स्टडी की ऐसी होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सिविल का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, किसी का भी हो। मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, दे आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, all subject has some reasons. So after making all this calculation, we are in a position to write a compatibility equation. So compatibility equations, next step is compatibility equations. जिसको भी प्रॉब्लम हो compatibility equation, उनके लिए मैं बता रहा हूं, compatibility equations are those number of equations which are required to write so that all the forces in the given beam can be calculated. These are equations apart from equilibrium, additional equations. These are the additional equations apart from equilibrium which are needed to calculate all the forces. That has been communicated to you. I am just repeating. Why I am repeating? I know your problem. थोड़ा सा देर में पिक होता है आपका, I know very well. तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, गैप। Compatibility equation, to write a compatibility equation, it's very simple. We have to go where? At point A, at point B, at point C, है ना। 1 by 1 जाएंगे और 1 by 1 लिख देंगे सब। We can write a compatibility equation at point A, we can write the compatibility equation at point B, we can write the compatibility equation at point C, using these deflections, so in this manner we are able to find additional equation, and that additional equation will be used to calculate the values of MA, MB and MC. And once we know that values, we can calculate all other remaining forces. We are in a position to calculate all other remaining forces. Okay, so we will write equation at point A. So compatibility equation at point A. Why point A is selected? Because the redundant is acting at point A. किसी और पॉइंट पे लगा होता तो वो पॉइंट हम लेते। Is it clear? So at point A क्या होगा? सबसे पहले गिवन में देखें। Look at this. A point will not move in any direction. It means deformation at point A will be 0. Deflection at point A will be 0. But this segment, ये क्या है? 1, 2, 3, 4 फिगर को अगर मिला दें तो क्या मिलेगा हमें? This one. चारों को अगर ये मिला दें हम तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। तो इसका मतलब है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है डिफ्लेक्शंस, उन सबको सम कर दें तो कितना होगा? 0। इसी तरीके से व्यू पॉइंट पे क्या होगा? 0। यहां पर भी डिफ्लेक्शन, राइट। सो वी विल एट पॉइंट ए d1, दिस वन d1 प्लस ये है ना। नाउ आई एम राइटिंग द वैल्यूज, नॉट राइटिंग del 1 1। ओके, सो इट इज
5/3i into x1, that was x1, that was x1, नहीं x2, that was x3. These are the redundant. x1 plus 5/6ei, x2 plus 0 equals to, clear? So d1 can be transferred to that place, so it will be 5/3i. वैल्यू d1 की भी तो लिख सकते हैं ना, राइट द वैल्यू ऑफ d1, नो प्रॉब्लम. कितना है? -10.42 डिवाइड बाई ei. So ei can be cancelled out throughout, ei can be cancelled out, and that value can be shifted to right place, to right side. So we will have 5/3 x1 plus 5/6 x2 plus 0 equals to 10.42. Write equation number 1. It's very simple to write. So we using these deflections, we are in a position to write additional equation, and that is the structure 2. यही तो है structure 2. Structure 2 यही तो है, यही तो बताया था मैंने. The process to write the additional equation. The same procedure will be applied at point B. Same procedure will be applied at point B. So at point B, क्या होगा? d2 plus this one multiplied by ma plus this one multiplied by mb, this one multiplied by mc equal to 0. Nothing else. Very simple. Clear? So we will write the thing. Minus 17.42 divided by ei plus 5/6ei into x1 plus how much? 15 है ना, 15/6 ना बेटा, 15/6 ei into x2 plus 5/12 ei into x3 equals to 0. And this is equation number, अभी नहीं, ei को कैंसिल आउट कर देते हैं. So this is 5/6 x1 plus 15/6 x2 plus 5/12 x3 equals to how much? 17.42. This is equation number 2. Very simple. We have written another additional equation. And the additional equation can also be written at point which one? C. We can also write another equation at point C. So we will write at point C. At point C. So D3, yeah, this one. Tell me, -23.63 divided by ei plus 0. So no need to write 0. Plus 5/12 ei multiplied by x2 plus 15/6 ei multiplied by x3. That comes to be 0. That should be 0. So finally you can write as 5/12 x2 plus 15/6 x3 equals to 23.63. Write equation number 3.
So this is the procedure to write the compatibility equation. This is the procedure to write the compatibility equations. And after writing the compatibility equations, we can calculate the values of x1, x2, x3 by two separate process. बताया था मैंने आपको. You can calculate these two values either by matrix method or by manual. मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो जाएगा. क्लियर ना. ये सारे जो इस साइड में राइट साइड वैल्यू क्या है, ये d1 है माइनस d1. लिसन हियर, क्या है ये, माइनस d1 माइनस d2 माइनस d3. और ये जो बीच में x1 का मल्टीपल लिखा हुआ है, ये दिस वन 5/6, यही हमने गायब कर दिया है. क्या है ये, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है. ये x2, ये दिस वन दिस वन दिस वन. तो वी कैन सॉल्व आइदर बाय मैट्रिक्स और बाय फ्लेक्सिबिलिटी, आइदर बाय मैनुअल. क्लियर. तो अभी तो हम पहले मैनुअल करते हैं, इसके बाद मैट्रिक्स में आपको दिखा देता हूं. क्लियर. सो यू शुड यूज योर कैलकुलेटर. So using equation 1, 2 and 3, we can have value of x1, we can have value of x2, we can have the value of x3. So feed the different values in your calculator and tell me the value of x1, x2 and x3. सभी लोग करें, सभी लोग. So yes, 4.19 value of 4.16 8.76. And the unit will be, what are these? These are MA, these are MB and this is MC. जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि वो कैलकुलेटर्स को सही यूज नहीं कर पा रहे हैं. और जो नहीं यूज कर पा रहे हैं, डू नॉट वरी, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू. आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हो, ये वाली जो वैल्यूज हैं, इस साइड वाली वैल्यूज, इसको आप माइनस ले रहे हो, इसको आप माइनस ले रहे हो, इसको आप प्लस ले लीजिएगा तो यही वैल्यू आ जाएंगे. हमेशा से यही रूल फॉलो करिएगा. कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो राइट साइड वाली वैल्यू जो लिखा हुआ है, जिस साइन में है उसी साइन में लीजिए. क्लियर. सभी लोग बेटा कैलकुलेट करके देख लो, वेरीफाई कर लो. जिसको प्रॉब्लम हो मैं उसकी सीट पर आके बता दूंगा. लेकिन कोई माइनस प्लस का कोई आज के बाद से कंफ्यूजन मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का कोई कंफ्यूजन हो. बात करने के लिए मैंने नहीं कहा हुआ है, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअली मैंने कहा हुआ है. सभी लोग सॉल्व करें. सभी लोग सॉल्व करें बेटा, बैठे नहीं, क्योंकि अगर आज बैठ गए तो फिर बैठे रह जाओगे. और दोनों सेम आ गए. A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू ऐसे फिट क्या करो, 5 सर वैसे ही करिए डिवाइडेड बाई 3. समझे. ये वाला यूज करो, एक भी चीज़ का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड वाला ही है, फ्रैक्शन वाला है. वैसे ही कर रहा हूँ तो बाद में आंसर आ जाना. नहीं मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, 5/3
5/6 और ये कितना है 0, 10.42, ठीक है, ये हुआ 5/6 और ये है 2.15 5/12 और वो कितनी आ रही है D3 कितनी है 17.42, सही है। 0 कितनी है ये 15/6 गलत किया ना, ये तो वो तो 0 थी ना, 0 थी और 15/12 है उसके बाद। तो मेरा वो करना पड़ा, गलत हो जाएगा ना, चेंज करेंगे अगली बार। 2.5 भी आएगा नहीं तो 116 लिखा। इसमें गड़बड़ था, सही फिर इसमें ये वाले में ना, ये 0 होगा ना, 107 आ गया। 107 आ गया था X2 की वजह से। रिएक्शन जाएगी। 3.9। दोबारा चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करना, कोई गलत हो गया। ये आ रही है X2 की वजह। X2 की वैल्यू 4.10। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया है 3 डिजिट्स में, ठीक है ना, हमने 3 डिजिट में कैलकुलेशन है और यहाँ पे हम कर रहे हैं केवल 2 डिजिट्स में, राइट। कोई है और किसी को डाउट नहीं ना? ओके, सो इसके बाद क्या करना है हमें? We will, after knowing that values, after knowing the value of MA, MB, MC, we will calculate, we will use these values to calculate remaining forces. We will calculate other forces like VA, like VB, like VC and like VD. We will calculate in this using which one? Using equilibrium equation. Using equilibrium equation. Using equilibrium equation, and that is the part of structural analysis 1. This is the part of structural analysis 1. Okay, so we will calculate these remaining forces, but prior to that I would like to tell you the flexibility method. I would like to tell you to tell what is the flexibility method. Flexibility method में हम क्या करते हैं, clear? फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से भी हमें यही चीज मिलती है, सेम थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। कैसे करेंगे वो अभी मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से इसके बाद का जो स्टेप है उसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, क्लियर? तो आप हेडिंग डालेंगे यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। using flexibility method. Using flexibility method. This is the matrix approach. And as per the syllabus, it is included in unit 4. मैट्रिक्स एनालिसिस अलग से है, लेकिन मैं उसको सबको साथ में लेकर चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यही चीज है, बेटर है कि अभी बता दूं मैं आपको, राइट। सो वी नो वेरी वेल दैट वैल्यू ऑफ एक्स, बताया था मैंने, एक्स विल बी एफ इनवर्स इंटू माइनस, ये आपको हमने बताया था। जो लोग एब्सेंट थे मेरा वीडियो देख सकते हैं और उसको समझें। सो एक्स क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एम ए, एम बी, एम सी,
this x, and what is d? What is d? This is d1, d2. Clear? So d will be लिख लें यहाँ पे, EI कॉमन है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, 1/EI। क्या क्या लिखूँ मैं, 10.42 और कितना ये 17.42 एंड 23. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। वो भी माइनस मैंने बाहर ले लिया है, आई हैव टेकन द माइनस साइन आउटसाइड फ्रॉम द flexibility element. Is it clear? D will be this. Any problem? There should not be any problem. There should not be any problem. F यही तो है, this one F। अगर ये F इनवर्स मिल जाए तो मल्टीप्लिकेशन हमें करना आता ही है, पढ़ चुके हैं 11th 12th में, है ना। तो नेक्स्ट वी विल राइट F। F के लिए मैं इधर बता देता हूं क्या होता है। F इज द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। F इज व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। F is the flexibility matrix. If it is flexibility matrix, then it means it is the collection of some elements. Matrix means the collection of elements in an organized manner. Row, column in a proper sequence. And what will be the sequence? First of all, it will be of order. सबसे पहले आप ये देखिए ऑर्डर कितनी होगी। What will be the order? So the order will be number of redundants. Total number of redundants. What are the total number of redundants? 3. The order of flexibility matrix will be 3 into 3. Order of flexibility matrix will be 3 into 3. Why 3 into 3? Because the total number of redundants are 3. It means flexibility matrix will have 3 row and 3 column. Flexibility matrix will have 3 row and 3 column. It is clear to all of you? Is it clear? If it is clear, then its element can also be written. कैसे लिखे जा सकते हैं देख लो। हमने इसमें क्या किया है, पहला पॉइंट इसको दिया है, दूसरा इसको दिया है, तीसरा इसको दिया है। इट मीन्स कि वी आर फॉलोइंग ए डायरेक्शन, ए यूनिक डायरेक्शन। इधर से चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये नोटेशन अगर हम फॉलो करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं, तो जिस तरीके से इस फिगर में लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या है ये 5/3i, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5/3i। दूसरा है 5/6ei, तो अनदर एलिमेंट विल बी 5/6ei एंड अनदर एलिमेंट विल बी 0। अगर हमने ये नोटेशन ले रखे हैं उल्टा, ऐसा नहीं कि इसको 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया है, तो फिर हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमने 1 2 3 एक सीक्वेंस में रखा हुआ है, तो इस फिगर में जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज क्या है, इसकी एलिमेंट्स हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? सीक्वेंस हमने ये क्या है, एम ए को क्या ले रखा है, x1, दिस इज x2, दिस इज x3। मीन्स हम कह रहे हैं किसको, ए को कह रहे हैं पॉइंट A1, एक पॉइंट ए को हम क्या कह रहे हैं, नोड नंबर 1, पॉइंट बी को कह रहे हैं नोड नंबर 2, पॉइंट सी को कह रहे हैं नोड नंबर 3। तो हम इधर से इस साइड से इस साइड की ओर चल रहे हैं, सीक्वेंस ही मेंटेन है। तो अगर इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, तो जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है वही सीक्वेंस में इसके एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब ये वाला क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट एलिमेंट। और इधर भी हमने देखो सीक्वेंस फॉलो किया है, ये किसके लिए था, ये था x1 के लिए, दिस वन वाज x2, दिस वन वाज x3। इधर भी देखो हमने सीक्वेंस फॉलो किया, 2 सीक्वेंस हमने फॉलो किया है यहाँ पे। कौन कौन सा,
पहला तो 1 2 3 दिस वन सीक्वेंस, और दूसरा क्या फॉलो किया यहाँ पे, फिगर भी हमने सीक्वेंस में बनाया। ऐसा नहीं है कि इसको पहले बना दिया है, इसको भी बनाया। पहले x1 बनाया, x1 के लिए बनाया, दूसरा x2 के लिए बनाया, और फिर x3 के लिए बनाया। तो दो रूल को हमने फॉलो किया यहां पे। इस दोनों रूल को फॉलो करने का फायदा क्या होगा, जिस तरीके से यहां पे लिखा होगा वही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। मींस ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट विल बी फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड रो का पहला कॉलम। ये क्या हो जाएगा, थर्ड रो का पहला कॉलम। और नोटेशन भी लिखा हुआ है, 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपकी हेल्प के लिए ये भी लिखा हुआ है। ये जो नोटेशन बना था, मैंने बताया था कि इसको बाद में मैं लिंक कर दूंगा, इसी दिन के लिए मैंने कहा था, इसी दिन के लिए मैंने 1 1 बताया था। क्लियर, इधर देख लो क्या मतलब है, ये दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम। हाँ पहले दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का जस्ट लिसन। हाँ, फर्स्ट इज फॉर कॉलम ना, फर्स्ट इज फॉर कॉलम। नहीं ठीक है, यहां पे आप यही समझो, फर्स्ट वन इज फॉर कॉलम एंड सेकंड वन इज फॉर रो। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, आप समझ लो यही है, आप समझ लो इसको, यही है। उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो आ जाएगा, ये इधर हो जाएगी, ये चीज तो बराबर है ना, लुक हियर, है ना, ये तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ट्रांसपोज करने पे बराबर आएगा। तो कैसे भी करो, मैक्सवेल्स थ्योरम से वो बराबर हो जाए, मैक्सवेल्स थ्योरम से बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब, कंक्लूजन क्या है मेरा, लिसन प्रॉपरली, लिसन प्रॉपरली। कंक्लूजन ये है कि जो ये एलिमेंट जिस फॉर्म पे लिखा हुआ है उसको वैसे इधर उतार दो। क्लियर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे दूसरी रो का ये 5/6 CI, और इधर क्या आ जाएगा 15/6 CI, और इधर कितना हो जाएगा 5/12 EI, और इधर क्या हो जाएगा तीसरी रो के लिए दिस विल बी 0, दिस विल बी 5/12 EI, and another will be 15/6 CI. So this is 3/3 matrix. Clear? Are you able to write this flexibility matrix? दो चीज फॉलो करनी है आपको। कौन कौन सी चीज फॉलो करनी है, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करोगे नोट की, लेफ्ट से राइट की तरफ करोगे, और ये जो रिडंडेंस के लिए बनाओगे, पहला फर्स्ट के लिए बनाओगे, फिर सेकंड के लिए बनाओगे, फिर थर्ड के लिए बनाओगे। इसके बाद हर पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वही एलिमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। किसको कहां पे प्लेस करना है, कहां पे एलिमेंट प्लेस करना है, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ये। क्लियर, सो आफ्टर नोइंग दैट वैल्यू, इसको क्या करें हम, EI को कॉमन ले लेंगे। EI को अगर हम बाहर ले लें तो डिवाइड जो हर एक में हो रहा है वो नहीं लिखना पड़ेगा बार बार हमें। और यहां पे देखो 12 है तो हम कर लें 1/12 EI, 1/12 EI कॉमन ले लो, 1/12 EI कॉमन ले लो। 1/12 EI कॉमन मीन्स हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/12 EI से, है ना। तो पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, नहीं ये हो जाएगा
हाँ 20 ना। दूसरा बताओ 10, अगला 0, 10, कितना 13, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट कितना 0, 5, कितना 30। सेकेंड रो कितना है ये 20, 10, 0, 20, 10, 0, 10, 35 and 0, 5, 30. It's okay. So this is the flexibility matrix. Clear? क्या निकालना है हमें? इनवर्स. We have to find its inverse. We have to find its inverse. तो इनवर्स निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है मैं एक बार निकाल के बता देता हूं, वही चीज फॉलो करें। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूं। सो एफ इनवर्स कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ एफ डिवाइड बाय मॉड ऑफ, और इसका भी ट्रांसपोज क्या? इसका भी ट्रांसपोज यही होता है। यही तो होता है इनवर्स। सो एडजॉइंट एफ एडजॉइंट एफ क्या होगा? 1/12 भी आई तो बाहर ही कर लो। 1/, अरे ये तो मॉड है ना, ऐसे लिख लो। ठीक है, बात वही है। इसका तो ट्रांसपोज क्या करोगे? वो तो मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड का ट्रांसपोज क्या होगा? क्लियर? कोफैक्टर्स, नाउ वी हैव टू राइट कोफैक्टर्स। और शर्मा जी के तुम चेले हो ना, दीपक शर्मा जी के चेले हो ना? शर्मा जी नहीं पढ़ा पाएंगे, उनकी औकात का नहीं है। बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, डूब जाओगे। नाम लेके कह रहा हूं मैं, डूब जाओगे। उनके बस का नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं सबको, और आप लोगों को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं। आप नहीं समझ पाते हैं। यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग का मिसयूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। 20 नंबर का करके आते हैं आप, और 20 नंबर का 30 नंबर अपने आप हो जाता है वहां पे। इस चीज का फायदा उठाते हैं, समझे? सावधान रहे ऐसे लोगों से। क्वांटम से पढ़ पढ़ के आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करवा देते हैं, और 20 नंबर आपके आ जाते हैं, अपने आप स्कूटनी में पास हो जाते हैं, और उनको आप ब्रह्मा समझ लेते हैं। सावधान रहे ऐसे लोगों से। डायरेक्ट मैंने पॉइंट आउट करके कहा है, नाम लेके कहा है, ताकि बाकी और लोग भी समझ जाएं। इसका कोफैक्टर्स, इसका पहले तो साइन करें, प्लस, मैं पूरा बता देता हूं, प्लस, और दूसरा एलिमेंट माइनस का होगा, फिर प्लस का, अनदर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस। यही तो होगा, यही होगा। ये एलिमेंट लिख लो। ये एलिमेंट लिखने का तरीका क्या है? ये दिस वन क्या बचा? 35 और 5 30। नोट कर लो कितना हुआ इधर? 35 और ये 5 30। हाँ 875, ठीक है। इधर हम लिख लेंगे उसको, बाकी पहले लिख लो यहाँ पे, या चलो लिख ही लेते हैं। कितना है ये? एडजॉइंट एफ 1/12 1/12 EI कितना है ये? 875। 870 जो आता जाएगा लिखते जाएंगे। हमें केवल यही लिखना है, इसको नहीं लिखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूं उसको, ताकि जिन लोगों को याद ना हो वो समझ सके। हमें जो इस साइड लिख रहा हूं बस कुल उतना ही लिखना है एग्जाम में। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज ओनली फॉर दोज हु फील्स डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एन यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट कॉलम कैसे निकलेगा? 295, वेरी गुड। कैसे आया ये? ऐसे गलत कर दिया ना, दिस वन, ये वाला। तो 10 0 5 30, राइट। सो दिस इज, मैं लिख देता हूं इधर। कितना था बेटा? 10 5 और 0 30। ये वाला कॉलम कैसे होगा? दिस वन रो, इसको खत्म करो तो 10 30 0 5, 10 30 और 0 5। इसी तरीके से बाकी सारे लिख के मुझे ये वैल्यू बताओ फाइनली, मुझे ये वैल्यू फाइनली बताओ। फर्स्ट इज 875, अनदर एलिमेंट इज -300, not 300 only, -300. Another element 50, not 20. Another element is 50. अगला बताओ, -300, -300, 600, फिर 100, अगला 50, माइनस का 100, अगला, अगला बताओ 500, सेकेंड रो का ये माइनस में है, ये लेट मी चेक, इट इज माइनस, यस दिस इज माइनस, चेक इट आउट, करेक्ट करेक्ट। सो एडजॉइंट भी निकालना आ गया, तो अब क्या इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो हो गया, है ना। सो इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट एफ का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? बस यही करना है, 875 और उधर चला जाएगा -300 और ये 50, और इधर कितना आया? -300, 600, -100, 50, -100। जरा मुझे बताओ कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना? चेंज हुआ कोई? नहीं चेंज हुआ। अब आपको समझ में आ गई यहाँ पे नोटेशन 1 1, ये 1 2, इट कैन बी 2 1 आल्सो, इट कैन बी 2 1 आल्सो, क्लियर? इट कैन बी 2 1 आल्सो, क्योंकि ट्रांसपोज ही है वो। दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देयर इज नो एनी डिफरेंस।
देयर इज नो एनी डिफरेंस। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? मॉड ऑफ एफ निकाल ही सकते हो। मॉड ऑफ एफ कितना है? एफ ये था ना 1/12 bi। मॉड ऑफ एफ निकाल लो। कितना है मॉड ऑफ एफ? 1/12 bi। और अंदर का कितना है? 14500। 14500। सो दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई EI। ऊपर कितना आया? 120.8.33। 120.8. This is mod f. This is mod f. Clear? This is mod f. Now we are able to find f inverse. Now we are able to find f inverse. Clear? क्या बेटा? Okay. So make it correct. हाँ? f inverse मालूम है कितना है? Adjoint divided by f. Adjoint divided by f. तो adjoint is this और f is this. EI cancel out हो जाएगा क्या? EI will be cancel out. So I am writing here 1/12 bi multiply by कितना हो जाएगा? EI divided by 1208.33 इंटू जो मैट्रिक्स है जब बोलना बेटा, दिख नहीं रहा मुझे। 875 माइनस 300 माइनस 50 माइनस 300 600 माइनस 100 50 माइनस 100 5। इस मैट्रिक्स में मैंने बताया ही था कि ये सब क्या है? ऑलरेडी ट्रांसपोज्ड है ना। ये इसमें जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, ऑलरेडी ट्रांसपोज्ड, राइट? तो निकाल एफ इनवर्स निकल गया क्या? कितना आया ये? 1/, नहीं कुछ गलत हो गया। वी डिड ए मिस्टेक। क्या मिस्टेक की? ये वाला फैक्टर नहीं आएगा क्या? 1/12 bi नहीं आएगा क्या? 1/12 bi कहाँ से आया था? चेक इट आउट। आएगा क्या? ये नहीं आएगा। आई थिंक इट विल नॉट बी देयर।
हो गया टाइम? आपका टाइम हो गया ना यार? ये 15 मिनट दे दोगे क्या? मैं आपको बुला लूँगा। हाँ यहीं पे बैठा हूँ। हाँ क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, मैट्रिक्स वाला चल रहा है ना? मैट्रिक्स वाला इन्वर्स इन्वर्स सारा बताना पड़ा ना इनको, वो फैक्टर वगैरह सब निकालना पड़ा। कोई नहीं, ठीक है, इस करेक्ट। कितना आया? 1/EI/1/14। What is F inverse? लेट मी चेक, ये शायद होगा नहीं यहाँ पे। F इनवर्स कितना होगा? इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये वाला फैक्टर नहीं आ रहा है इसमें, 1/12VI नहीं आ रहा है। आएगा? 1/12VI नहीं आ रहा है। कहाँ से मिस्टेक हो रही है? Yes. Yes. Listen, देखें इधर क्या मिस्टेक की हमने। एडजॉइंट एफ मैट्रिक्स हमारी ये थी ना, दिस वाज द, सभी ध्यान दे इधर, दिस इज द एफ मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट के लिए हमें इस मैट्रिक्स का लेना है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है ना। कोई मतलब है क्या? नहीं है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। तो 1/12VI हमें केवल इससे मतलब है। इसको आप ऐसे समझो, इसको लिखो आप ऐसे 1/12VI मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए, ऐसे कर लो। बात समझ में आ रही है? मैट्रिक्स ए। तो अब जब मॉड वर्ड होगा किसका होगा? इसका होगा। क्लियर? नहीं समझे? तो इससे कोई मतलब नहीं है। 1/12VI इसको बाहर लिखा रहने दो ऐसे। इसका ट्रांसपोज हमने किया था तो कितना आया था? तो फिर ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। अगर ये करते हैं तो ये इतना होगा एडजॉइंट ए। इसको ऐसे आप लिखें, ऐसे लिखें सीधा। इसको क्या लिखें? 1/12VI इंटू ए। तो एडजॉइंट ए इतना हो गया। ओके, सो एडजॉइंट का ट्रांसपोज भी इतना हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, सो अब एफ इनवर्स कितना हो जाएगा? इसका भी वो, तो ये हो जाएगा 12EI डिवाइडेड बाई 1। क्लियर? यहां पे देखें, एफ इनवर्स करेंगे तो 12EI/1 मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। क्लियर? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? इसका भी तो इनवर्स करोगे तो 12EI 1/12VI विल बी रिटन एज 12/1 इज इट नॉट, इनटू ए इनवर्स। क्लियर? सो ये निकाल दिया आपने, ट्रांसपोज निकाल दिया। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ए। कितना है ये?
इसकी कितनी निकाली थी हम लोगों ने? 14,500 निकाली थी क्या? 14,500 निकाली थी। अब निकाल लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करो। उसमें वैल्यू पुट किया तो एफ इनवर्स इक्वल्स टू 12 EI बाई 1 मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना हो जाएगा? ए इनवर्स यही तो होगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, यही तो होगा। क्लियर? सो 12/EI ये तो हो ही गया। फार्मूला क्या था हमारा? ये वाला। इस चीज में हम रख रहे हैं बस है ना। सो 12/1 हो गया इनटू ए इनवर्स की जगह पे क्या हो गया हमारा? दिस वन डिवाइड बाई ये। क्लियर? सो डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 14,500 और ये कितना आया इधर? 875 माइनस 350 और कितना हुआ ये? माइनस 300 600 माइनस 150 कितना? माइनस 100 500 ये हुआ। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक इट आउट। So finally we will have कितना हुआ ये? EI डिवाइडेड बाई 1 to कितना हुआ? 1208.33 मल्टीप्लाई बाई ये 875 माइनस 350 माइनस 300 या इसे क्यों बार बार लिख रहा हूँ मैं? यहीं पे इसको लिख लो EI डिवाइडेड बाई 1208.33 ऐसे भी लिख। अब हमारा x क्या है? F इनवर्स मल्टीप्लाई बाई डे माइनस डे, ये था ना। स्टार्टिंग में क्या लिखा था हमने? यही तो लिखा था। अब हमें एफ इनवर्स भी मिल गया, ए भी मिल गया, तो कर लो, मल्टीप्लाई करो तो एक्स निकल आएगा हमारा। ऑर्डर कितनी आएगी? ये कितने ऑर्डर में है? दिस इज इन 3 into 3 और ये कितना है? 3 into 1 तो कितना? और ये कितना है? 3 into 1 में ही है क्या? तो वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? मल्टीप्लाई करो। सर आपने जो उसका एडजॉइंट ट्रांसपोज किया है 12/EI को मतलब क्या ट्रांसपोज? मैंने बोला ना, केवल आप इसको ए लो ना, केवल इसको ए लो। 12/EI किसका? अरे इसको छोड़ो ना, यहाँ पे क्या ना मैंने एफ को ये लिख दिया ना, एफ बराबर 1/12BI इंटू ए। केवल इसको ए मानो, बस इसको ए मानो। अब ए का इनवर्स लिखना है, एफ इनवर्स करोगे तो क्या होगा? इसका भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स। केवल ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको केवल ए मानो। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? यही तो गलती हो रही थी हमसे, यही तो गलती हो रही थी। तो इसका भी इनवर्स करेंगे और इसका भी इनवर्स करेंगे। इसका इनवर्स यहाँ पे हमने निकाल लिया तो ये 12BI ऊपर हो गया। क्लियर? क्लियर नहीं? वो मल्टीप्लाई करें हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इधर देखो, दिस वन ये होगा EI डिवाइडेड बाई 1208.33 मल्टीप्लाई बाई डी कितना? डी कितना है? डी कहाँ पे? ये है, डी इज दिस, तो कितना ये 1/EI ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द
मल्टीप्लिकेशन ऑफ 875 माइनस 350 और ये आया माइनस 300 50 600 माइनस 100 और माइनस 100 500 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 10.42 17.42 एंड 23.63। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, आ रहा है ना, सेम आ रहा है। इसको जब आप करोगे तो कितना आया वैल्यू, जरा बताना, बताओ कितना बेटा, नहीं फाइनली बताओ। ये हुआ जाके तुम्हारा x1 x2 x3 4.19, दूसरा 4.107 8. So by doing that procedure, we are also getting the same value of x1, x2 and x3. We are getting the same value. Clear to all of you? So in my next class, I will tell you, सभी listen properly. अगला काम बचा क्या है वो मैं बता रहा हूं, so that आप जैसे ही आए घर पे जाएं और आप भी एफर्ट कर सकते हो। क्या चीज बचा हुआ है, फोर्सेस कैलकुलेट करना, रिमेनिंग फोर्सेस कैलकुलेट करना। अभी हमने क्या किया है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज किया है। we had written the compatibility equation, and after writing the compatibility equation using matrix method as well as manual method, we have calculated value of x1, x2 and x3. Means extra forces has been calculated now. Extra forces has been calculated now. The remaining thing is to calculate all other remaining forces. That I will tell you in my next class. Okay. And after calculating that things, I will also tell you the procedure to make the bending moment and shear force diagram. Clear? Oh, that's it for today. थैंक यू। अटेंडेंस मैं सर की क्लास से ले लूँगा। आप लोग पानी वानी पीने जाओ।